Welcome all of you, Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. I am Yushi Misra from Jwala Devi Gangapuri Rasulabad. Today we have to teach about topic of synthesis, which is very important for intermediate classes. Just we know that what is a mean of synthesis and how it can be applied for our sentences. As we know that it contains, as far at first I want to tell you about proper mean of synthesis. It is called in Hindi संश्लेषण. It can be said, it can be detailed as the proper sense of synthesis in Hindi संश्लेषण. What is a means for it? It contains as far one simple part, complex and compound. These three groups are called as for synthesis. Synthesis means combined part of sentences, which may be included for simple, complex or compound. It can be defined or it can be denoted as for three content, for simple, complex and compound. How it can be found as for simple, complex and compound? As we know that when we start about any content, at first we should know what is proper means of, what is proper definition of given content. That should be denoted or that should be organized through our condition or through our content, which is given through synthesis. Synthesis means combined. It can be known as combined. It combines parts of sentences as for simple, complex and compound. How it can be denoted as for? Suppose that I saw a man. I saw a man. He was blind. He was blind. This is your separate part of sentence. ये जो आपका sentence है वो separate है. I saw a man, he was blind. ये अलग अलग part है. And if we want to combine this sentence into simple sentence, तो how it can be combined? कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं? इसको अगर हमें simple में देना है तो इसकी क्या condition है? कैसे हम इसको सिंपल में जोड़ेंगे? इजिली होता क्या है? सिंपल सेंटेंस की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स की क्या है एंड कंपाउंड की क्या है? सिंपल सेंटेंस कंटेन्स फाइनाइट वर्ब्स. इट कंटेन्स फाइनाइट वर्ब्स. इन हिंदी सीमित क्रिया. इन हिंदी सीमित क्रियाएं. इसमें क्रियाओं का हम सीमित, लिमिटेड कर देते हैं. That is called as finite verbs. Finite verbs contains for simple sentence, or you can say the word one subject. It can be denoted as one subject. इसमें subject एक होगा अथवा finite verbs होगा. This is called as simple sentence. अगर इसी को आपको देना हो कि हमें इसको simple sentence में ऐड करना है, I saw a man, he was blind. This is your part of sentence which is given in separate part, and if we are advised, if we are denoted as for combined to know it for simple sentence, how it can be combined? Just I have told you or I have suggested you about simple sentence. It contains one subject, subject one, and there are two subjects. Carefully we have to take up this point or given content. There is one subject. Subject is one, which is known as finite verbs. And here, finite verb is also next condition of simple sentence. Subject एक होगा अथवा क्रिया का सीमित रूप होगा. यहाँ देखिए आप I and he. This is your two content. Saw and was. This is your two verb, which is denoted as for simple sentence. Simple sentence contains finite verbs. Finite verbs क्या है? सीमित क्रियाएं. और जब क्रियाएं हमारी सीमित होंगी
हमारी क्रियाएं लिमिटेड होंगी, फाइनाइट्स होंगी, तो इट विल बी डिनोटेड एज फॉर सिंपल सेंटेंस। इसको हम सिंपल सेंटेंस को डिनोट करेंगे। इसमें कैसे आप जोड़ेंगे सेंटेंस को, इसको जरा इस पर ऐड कर लिया जाए, देख लिया जाए। तो आई सा अ ब्लाइंड मैन, आई सा अ ब्लाइंड मैन, दिस इज योर सिंपल सेंटेंस। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। कैसे सिंपल सेंटेंस हुआ, इसको फाइनाइट करिए, श्योर करिए कि दिस इज सिंपल सेंटेंस। देयर इज सब्जेक्ट वन एंड सा इज मेन वर्ब, दिस इज नोन एज अ फाइनाइट वर्ब, तो इट कैन बी डिनोटेड एज फॉर सिंपल सेंटेंस। माना इसी सेंटेंस को अगर हमें कॉम्प्लेक्स में एडवाइज करना हो कि वी हैव टू ट्रांसफर दिस कंबाइंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो हाउ इट कैन बी डिनोटेड, हाउ इट कैन बी कंबाइंड, इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर आप अटेंशन करिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, वन प्रिंसिपल वर्ब या प्रिंसिपल क्लास, नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लास, subordinate class, this is your complex sentence. Condition of complex sentence is denoted or is known as for one principal class and next part is known as subordinate class. To combine complex sentence we should apply, we should use subordinating conjunction. This is your three condition by which we have to find out about complex sentence. Subordinating conjunction, this is your subordinating conjunction. One principal class, subordinate class. To join for complex sentence we apply subordinating conjunction. What is subordinating conjunction? It is known as a dependency types of, it contains as the sense of dependency. How it can be denoted, how it can be found, how it can be denoted as for our importance of complex sentence. It means we can see, we can say, we can find out without subordinating conjunction we are unable to combine, we are unable to join sentence through complex sentence. Our sentence which is given, I saw a man, he was blind. This is your separate part of sentence. इसका जब आपने सिंपल बनाया तो क्या बना दिया, I saw a blind man. This is your simple sentence. इसी को अगर आपको कहा जाए कि combined into complex sentence, तो आप कैसे ऐड करेंगे, I saw a man who are that. यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, दो ऑप्शन मिलेंगे। यू आर एडवाइज टू यूज ऑफ हु आर दैट। तो आई सॉ अ मैन दैट वाज या हु वाज ब्लाइंड, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां माइंड करना है कि ये हमारा है पीसी, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसी, आई हैव टोल्ड यू प्रिंसिपल क्लास, एंड हु आर दैट इज ए सी, what is full form is C, subordinating conjunction. And next was blind, this is your subordinate class. So this is known as, this is creation, this is created as the sense of complex sentence. How we can find out, how we can know about compound sentence. Today we have to discuss about part of sentences which may be applied for synthesis. सिंथेसिस अप्लाई करने के लिए आपको तीन पार्ट मेन रूप से यूज करने होते हैं, वन सिंपल, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स एंड अदर इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। तो व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस की कंडीशन क्या है, हाउ इट कैन बी डिनोटेड, वन प्रिंसिपल क्लास, देयर इज आल्सो प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास plus coordinating conjunction, coordinate class, and to join for compound sentence
coordinating conjunction is used. Coordinating conjunction is used. Mind it. At first we have to know about compound sentence, how it can be found or how it can be denoted as for compound sentence. There is one principal clause, principal. This is your principal. In Hindi मुख्य उपवाक्य. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य उपवाक्य. इसमें जो होते हैं वो जो मेन पार्ट होते हैं वो आपके जोड़े जाते हैं. कोऑर्डिनेट क्लास, समान पदीय वाक्य, समान पदीय उपवाक्य, यू कैन से समान पदीय उपवाक्य, ये आपका हो जाएगा. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समान पदीय संयोजक. दिस इज योर 3 कंडीशन. 3 यूनिट है किसी भी, चाहे आप सिंपल को जोड़े चाहे आप कंपाउंड को जोड़े. व्हेन वी कंबाइन सिंपल सेंटेंस, वन प्रिंसिपल क्लास and next subordinate class. To join for complex sentence we apply subordinating conjunction, and for compound sentence there is one principal class and next part of sentence is known as coordinate class, and for combined here to join compound sentence we apply coordinating conjunction. एक एग्जांपल इस पर ले लिया जाए तो ये फाइनल हो जाएगा कि व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस. She worked hard but she failed. She worked hard but she failed. This is your PC principal class. Here but sentence is authorized as for coordinating conjunction. Coordinating conjunction, and this is your coordinate class. Coordinate class. Coordinate class. इस सेपरेट सेंटेंस में कैसे बनेगा इसका? She worked hard, she failed. This is your separate sentence. And when we combine this sentence, she worked hard but she failed, this is your compound sentence. Mainly आज आपको क्या कंटेंट पढ़ाए गए? सिंथेसिस के थ्रू हमें क्या इसमें अचीव करना है, क्या हमें गैदर्ड करना है, क्या हमें अटेंशन करना है. इसके थ्रू जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स sentence contains one principal class, subordinating conjunction and subordinate class. Compound sentence that can be also prepared, that can be also learned through this content, one principal class and next subordinating conjunction, and next part is given as coordinate class. For simple sentence I have told you, I have suggested you about simple sentence. There is one finite verb, or you can say the word there is one subject. इसमें कोई एक फाइनाइट वर्ब होते हैं या तो इसमें कोई एक निश्चित कर्ता होते हैं. सीधी सी बात है, श्योर है कि जब इसके सब्जेक्ट वन होंगे तो वर्ब भी इसकी सीमित हो जाएगी, या इसकी वर्ब जब सीमित रहेंगे तो इसके सब्जेक्ट भी लिमिटेड होते हैं. मीन्स वी कैन अप्लाई वन पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन फॉर सिंपल सेंटेंस. So today we have to define, today we have to go further, go ahead for the given ways as for simple sentence. How it condition, how many kinds of condition which can be found for. इसका जो पार्ट होता है वो पार्टिसिपल, फिर आपके होते हैं इन्फिनेटिव, फिर आपका होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फिर आपके कंडीशंस होते हैं केस इन अपोजिशन,
इसको नाउन इन फ्रेज भी बोलते हैं, नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन 1, 2, 3 and 4, 5 condition use of preposition before noun or gerund, noun or gerund, GERUND. Next, adverb or adverbial phrase, adverb oblique adverbial phrase, use of adjective, very important topic, use of adjective. Next 8, use of conjunction. Conjunction is also applied in very simple way, not very hard ways. Understand this topic. सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम 8 कंडीशन को फॉलो करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज नोन एज सिंपल पार्टिसिपल, infinitive to, it is called as for infinitive to, nominative absolute, case in opposition or noun in opposition. Next condition is known as preposition before, use of preposition before noun or gerund. And next condition, adverb or adverbial phrase, use of adjective and use of conjunction. This is 8 condition by which we can add our sentence, our separate part of sentence into simple sentence. According to given instruction, it can be followed. For simple sentence, it is denoted as 8 conditions, that is authorized on your board. Given content: participle, infinitive, nominative absolute, case in opposition. In Hindi it can be said as samanadhikaran. And use of preposition before noun or gerund, adverb or adverbial phrase, use of adjective and use of conjunction. ये आपकी 8 कंडीशन है जिसके द्वारा आप सिंपल सेंटेंस को फॉलो करते हो, सिंपल सेंटेंस को जिसके द्वारा हम आप जोड़ लेते हैं। तो इसमें चला जाए, इस पर आगे बढ़ा जाए कि पार्टिसिपल की अगर डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मीन्स मेन पार्ट ऑफ वर्ब। इसमें आप जब अगर नाम लेते हैं पार्टिसिपल का, देखिए अभी मैं सिंथेसिस के कंटेंट पर हूं और उसमें मेरा पार्ट चल रहा है सिंपल सेंटेंस, रोल है एक, इस 8 कंडीशंस के खंड है, पार्ट है, जिनके थ्रू हम पूरे सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं। उस 8 कंडीशन में क्या अलाउ होता है, मैंने पहला इसका कंटेंट दिया है आपको, पार्टिसिपल। व्हाट इज पार्टिसिपल? मेन पार्ट ऑफ वर्ब दैट कैन बी फॉलोड फॉर पार्टिसिपल। इसमें आपके जो पार्ट होते हैं, जैसे पार्टिसिपल आपको देना है, पार्टिसिपल it is divided into 3 parts: present participle, past participle और परफेक्ट पार्टिसिपल। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत सरल तरीके से, टेक्निकल तरीके से, नॉट अ ट्रेडिशनल स्टडी, हम आप फील कर रहे हैं कि जो हमारी स्टडी चल रही है वो ट्रेडिशनल तरीके से अब नहीं चल रही है। हमको आपको थोड़ा सा अपने ट्रेडिशन से हट करके भी लर्न करने का एक टैक्टिक्स होनी चाहिए, दैट शुड बी फॉलोड बाय अस। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे आप टेक्निकल याद कर लीजिए इसका, p⁻3 + p⁻3, क्यों ना इसी के थ्रू हम मैथमेटिक्स के भी कुछ सूत्र को पढ़ लें। p⁻3 क्या है, देखिए तीनों का पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, एंड पार्टिसिपल पार्टिसिपल पार्टिसिपल। तो इट कैन बी डिनोटेड एज फॉर p⁻3 + p⁻3। क्या मतलब इसका हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल
एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तीनों का मैंने पी ले लिया और इन तीनों का पी ले लिया, पार्टिसिपल पार्टिसिपल पार्टिसिपल। तो इसको मैंने एक संक्षेप में रूल दे दिया कि p पावर 3 प्लस p पावर 3, दिस इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। माइंड करिएगा, पार्टिसिपल 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, पास्ट में क्या है एंड परफेक्ट में क्या है, इनके माइन्यूट को, इफ वी वांट टू फाइंड आउट माइन्यूट डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, तो फाइंड करना होगा कि अमंग प्रेजेंट, परफेक्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, तो माइन्यूट को क्यों ना पकड़ लिया जाए। माइन्यूट से पकड़ने से हमारी काफी बातें बन जाती हैं। इसमें क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, इसे हमने नाम लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें जो भी एक्शन होते हैं वो एक साथ होते हैं। एवरी एक्शन प्लेज इक्वल वेज। जैसे शेर को देखा डर गया, सर्प को देखा डर गया, भयावह दृश्य को देखा आतंकित हो गया, डर गया, टेरर आ गया दिमाग में, फ्राइटेंड हो गया, भयभीत हो गया। तो ये कंडीशन आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल में होती है। इसके एक्शन एक साथ प्ले होते हैं। आर यू कैन अदर वर्ड, आफ्टर प्लेइंग फर्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन प्लेज विथ सेम टाइम विदाउट गैपिंग ऑफ टाइम। इसमें कोई गैपिंग टाइम नहीं होता है, बिल्कुल सेम टू सेम इक्विवेलेंट टाइम को कैरी करता है। दिस इज नोन एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के यही रूल है कि इसमें जो एक्शन प्ले होते हैं वो बिल्कुल इक्विवेलेंट टाइम पर होते हैं। जैसे आपने कहा कि आई सॉ लायन, आई रैन अवे। हियर फर्स्ट एक्शन का रिजल्ट क्या है, मैंने एक शेर को देखा और मैं भाग गया। शेर को देखेंगे तो रुकेंगे नहीं, उससे आप हालचाल नहीं लेंगे, तुरंत आप भगेंगे। तो एक एक्शन का दूसरे एक्शन पर तुरंत प्रभाव। यार यू कैन से द वर्ड दैट कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे आप शेर को देखते ही भाग रहे हैं, दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है, शेर को देख भी रहे हैं और भाग भी रहे हैं। तो क्या इसमें होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले डिफाइन करिए आप। जैसे आपने कहा कि सेंटेंस आपने लिया आई सॉ लायन, आई रैन अवे। इसके फर्स्ट एक्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब हम मॉडिफाई करते हैं, इसको जब हम गेदर्ड करते हैं, इसको जब हम ले आते हैं अपने पार्ट में, तो इसको हम कैसे करेंगे, सीइंग ए लायन, सीइंग अ लायन, आई रैन अवे, आई रैन अवे। ये आप पार्ट जो लिया गया है ध्यान दीजिएगा। सीइंग ए लायन हिंदी में अर्थ हुआ शेर को देख करके मैं भाग गया। हियर सीइंग इज एन एडजेक्टिव, सीइंग इज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल का अगर आपने नाम लिया तो पार्टिसिपल को कहते ही क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। अभी बात आपके सामने निकल करके आ गई कि प्रयोग के द्वारा मैंने इसको करके सीखा। डूइंग, बाय डूइंग वी लर्न। करके हम जब सीखते हैं तो ज्यादा अडॉप्ट होता है। या सीइंग ए लायन, शेर को देख करके मैं भाग गया। व्हाट इज सीइंग हियर, आप जानते हैं कि कुछ वर्ब्स जो सेंस पर डिपेंड करती है, दैट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर आईएनजी फॉर्म, उनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते हैं, लेकिन सी को हम यहां लगा रहे हैं। तो आपका तुरंत रिस्पांस होना चाहिए कि सीइंग जो वर्ब है यह एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो पार्टिसिपल किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। एक बात फाइनल हो गई कि पार्टिसिपल प्लेज द रोल ऑफ, पार्टिसिपल प्लेज द रोल ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका फाइनल हो गया होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा। इसमें आपने क्या कहा, सीइंग ए लायन आई रैन अवे, शेर को देख करके मैं भाग गया, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। इसमें ऐड हम कैसे करते हैं, फर्स्ट एक्शन में आईएनजी लगा करके। जो हमारा फर्स्ट एक्शन होगा उसमें हम आईएनजी लगा करके इसको हम ऐड करते हैं। चलिए अब आ जाइए पास्ट पार्टिसिपल पर। दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड नेक्स्ट कंटेंट इज गिवन एज फॉर पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो ऑलरेडी हैपन हो चुके होते हैं, वो ऑलरेडी घटित हो चुके होते हैं, उनको डिले नहीं होना है, उसमें डिले नहीं होना है। जैसे आपने कहा वो ऑलरेडी हैपन होते, जैसे घायल पड़े शेर को मैंने देखा, घायल पड़े सिपाही को मैंने देखा, खोई हुई कलम में पाया, टूटी हुई कलम में पाया, खोया हुआ पर्स में पाया, मीन्स पर्स मेरा खो भी गया था और मैं उसको पा भी गया। घायल पड़े हुए सिपाही को देखा। तो नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब्स होते हैं वो ऑलरेडी हैपेंस हो चुके होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल। जैसे इसका अगर एग्जांपल लिया जाए, आपने कहा कि आई सॉ अ मैन, ही वाज वुंडेड, दिस इज योर गिवन पार्ट। आपका ये सेपरेट पार्ट दिया हुआ है, गिवन है। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज वुंडेड, वो घायल पड़ा था। इट मीन्स दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। क्यों है ये पास्ट पार्टिसिपल? एट फर्स्ट वी हैव टू डिनोट, वी हैव टू फाइंड आउट। हमें ये जानना होगा कि पास्ट पार्टिसिपल है कैसे। आपने एक व्यक्ति को देखा, वो घायल पड़ा था, मीन्स उसके जो एक्शन है वो ऑलरेडी प्लेड हो चुके हैं, वो घटित हो चुके हैं, वो घायल हो चुका है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आई सॉ अ वुंडेड मैन, I saw a wounded man. Just I have suggested you once time that we should not contain in our study through traditional ways. हमें परंपरागत तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा परंपरा से हट के भी पढ़ना है। अब आप यहाँ माइंड करिए, एक दिमाग में क्वेश्चन अराइज करेगा कि a wounded, what is a wounded? This is your adjective. Because just I have suggested you, I have told you, पार्टिसिपल ऑलवेज कॉन्टेन्स द रोल ऑफ एडजेक्टिव प्लस वर्ब। ये एडजेक्टिव प्लस वर्ब को प्ले करता है। आपने यहाँ कहा आई सॉ अ वुंडेड मैन, मैं एक घायल पड़े हुए व्यक्ति को देखा, तो हियर अ वुंडेड, दिस इज योर एडजेक्टिव। एक चीज और माइंड करना होगा इसी के साथ कि वर्ब नेवर कैरीज एनी आर्टिकल। वर्ब कभी भी कोई आर्टिकल नहीं कैरी करता है। अगर आप यहाँ अ वुंडेड लगाए हैं तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि ये आपका वर्ब नहीं है, दिस इज योर एन एडजेक्टिव। तो आई सॉ अ वुंडेड मैन, दिस इज योर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्लियर हो गए होंगे कि इसमें एक्शन ऑलरेडी हैपन हो चुके होते हैं। एंड जस्ट आई हैव सजेस्टेड यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पार्टिसिपल विच कॉन्टेन्स रोल ऑफ एडजेक्टिव प्लस वर्ब। ये एडजेक्टिव का कार्य यहाँ कर रहा है। अ वुंडेड, अ ब्रोकन, अ फाउंड या अ लॉस्ट, खोई हुई पर्स को मैं पाया था, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, माई लास्ट पर्स। माई हियर पॉसेसिव केस एंड लास्ट इज नोन एज एडजेक्टिव केस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ पार्टिसिपल इज नोन एज परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका लास्ट पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड है, और इसका नेक्स्ट पार्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल? इसमें गैपिंग ऑफ टाइम होता है। सबसे जो अटेंशन करने की चीज है, जो आपको माइन्यूट डिफर फाइंड आउट करना है, उसमें यही है कि ये गैपिंग ऑफ टाइम को कैरी करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कैरी करता है? इट डज नॉट कैरी, और इट ऑलवेज कैरीज द सेंस ऑफ इक्विवेलेंट वेज। इसके जो वर्ब होते हैं वो समान रूप से रन करते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, इट कैरीज एज द एक्शन विच हैज ऑलरेडी प्लेड। इसमें क्रिया ऑलरेडी हैपन हो चुकी होती है। लेकिन अब अगर आप आ गए परफेक्ट पार्टिसिपल पर, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये गैपिंग ऑफ टाइम को कैरी करता है। सबसे जो बड़ी बात है, किसको कैरी करेगा? गैपिंग ऑफ टाइम को। कैसे आप इसको माइंड करेंगे? जैसे आपने कहा शी कंप्लीटेड हर वर्क, शी कंप्लीटेड हर वर्क। She went home, she went home। अब आप जरा सा एक चीज का तर्क करिए, इसमें एक चीज को फाइंड आउट करिए। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। हमारे जो टॉपिक है वो क्लियर होने चाहिए।
हम अगर इसको परफेक्ट पार्टिसिपल सपोज कर रहे हैं तो हाउ, कैसे है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आता है। शी कंप्लीटेड हर वर्क, दिस इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल, एंड शी वेंट होम, और वो घर चली गई। तो यहां आपने देखा कि वो कंप्लीट करने और उसके घर जाने के बीच में क्या है, गैपिंग ऑफ टाइम है, गैपिंग ऑफ टाइम है। इसमें थोड़ा समय का अंतराल है, समय अंतराल है, इसमें गैपिंग ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो इसका जब आप बनाएंगे, इसको जब आप ऐड करेंगे, तो इसमें आप लेंगे हैविंग, दिस इज योर फार्मूला, जस्ट आई हैव टू फाइंड आउट, हैविंग प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एक्शन। इसमें ध्यान देना होगा, एक्शन इसमें दो या दो से अधिक प्ले हो सकते हैं। शी कंप्लीटेड हर वर्क, दिस इज वन एक्शन, एंड नेक्स्ट शी वेंट होम, वेंट इज आल्सो वन एक्शन। अब इसके बीच में कैसे आप फाइंड करेंगे, इसका फर्स्ट एक्शन क्या है, उसने पहले अपने होमवर्क को कंप्लीट किया, आफ्टर दैट शी वेंट होम। तो व्हेन वी ऐड दिस सेंटेंस, when we want to add this sentence, we have to find out having completed her work, she went home. This is your perfect participle. How it can be found it is a perfect participle? Here having plus completed, this is your adjective, this is your part which is known as for adjective. So we have to find out what is perfect participle. Perfect participle introduces about the gaping of time, इसमें समय का अंतराल होता है। तो in this way I have told you today about synthesis, simple, complex, compound, and further I have told you about simple sentence. Simple sentence contain 8 conditions. I have taught you also participle. Participle contains 3 ways: present participle, perfect, and past participle. Thank you, a lot of thanks for everyone. We would like to visit at next video with infinitive 2. Thanks.